मैच्योर्ड बनना पड़ता है अगर पेपर अच्छे से निकालना है तो। करेक्ट। यू हैव टू बी सिलेक्टिव, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ये मैंने मेरे माइक्रो नोट्स बनाए थे, मतलब पूरा मैकेनिकल इसके अंदर। सो हाँ। अकॉर्डिंग टू मतलब ये मैं पढ़ता था, एंड मेरा एक हैबिट है सर फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड ओनली कि आई हैव हैबिट ऑफ राइटिंग ऑल द फॉर्मूलाज विदाउट सीइंग देम। यू वांट टू क्रैक डेट, कमिटमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि मतलब नॉट दैट फर्स्ट 2 months यू नो गेट एंड देन बस अभी नहीं हो रहा, अभी दूसरा कोई एग्जाम देखते हैं। दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। फर्स्ट यू नो मैं बता रहा हूँ ना, मतलब जो मैंने बिल्ड किया 6-7 months में बिल्ड किया सर। फ्रॉम जून टू डिसम्बर आई only by Exergic. 90% syllabus were covered. Great credit, huge credit to Exergic. To master that, you have to solve as much varieties as possible. You know, sometimes people say that solve 100 questions per day. Not 100 questions, 10 are also sufficient, but of different variety. एब्सोल्युटली। That's a smart difference between the smart work and hard work, I would say. कि हाँ मतलब सुबह से बैठे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत इजी क्वेश्चन है तो इट वोंट मेक अ डिफरेंस, यू नो। यस। बट यू आर सॉल्विंग 20 क्वेश्चंस ऑफ गुड क्वालिटी, you are through. Yes. First time in my all 3 attempts, my rough book was failed and I have to take the another one. Oh, so you had to submit the first one? Submit the first one, I have to take this another one. And then you know I had developed this habit from test series. मतलब you know don't hesitate to leave the question. हाँ okay, Yes. no problem, no problem, no problem. मतलब मैं एक टारगेट में बताना चाहूँगा, आई हैड सेट फॉर मी, अगर इजी पेपर है, यू नो पेपर इज इजी, देन 1 hour में 35 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन इजीली. If it is a moderate set paper, 25 plus question. And if it is a difficult question, then 20 plus question in the 1 hour. First of all, congratulations Prathamesh for such a great rank and marks in GATE 2024. सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ, कहाँ से हो, कहाँ से बीटेक हुआ? सर अब मेरा बीटेक, आई डिड माई बीटेक फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी फ्रॉम द कॉलेज KJ Somaiya College of Engineering, Mumbai. So I graduated in 2023 only, this year. When I was in third year, 2022, so I thought what to do next. So mind में तो चल रहा था कि let's go for out of India यार, or stay in India. So I thought whatever it be, let's crack some exam, you know, because JEE was not the great exam for me. So I thought another competitive exam must be there. So I thought, yeah, why not GATE? And opportunity. What first I thought is that let's crack in the third year, and then fourth year will be, you know, just chill. I was thinking of doing MTech from IIT. ठीक है। So I in my third year in month of June, I purchased Exergic. I saw on YouTube videos, toppers talk and everything, and I found it nice. So I joined Exergic. So I started watching all the video lectures. I purchased full video course, question bank, and test series at that time. So I started listening all the videos. One mistake I did, that as you had also mentioned, that don't only watch the videos, solve enough questions. Yes. So what one blunder I did was that I was just, you know, going through video lectures, taking the notes, and जब भी क्वेश्चन देखता था तो नहीं अभी नहीं करना, वो बाद में. अगर समझो नहीं आ रहा है तो इग्नोर, अभी नहीं, अभी ये क्वेश्चन, ये फ्लो बना है, अभी यही देखते हैं हम लोग. तो वो करते गया मैं. तो मतलब तब सितंबर में मैंने फर्स्ट टॉपिक वाइज टेस्ट दिया मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का. सो आई गॉट ओनली 3 marks आउट ऑफ 25. ओहो। दैट टाइम आई यू नो वेकअप कॉल था मेरे लिए. अभी हाँ अभी नहीं आ रहा है, मतलब कि तो थोड़ा डिप्रेशन में आ गया. तो मेरा फर्स्ट FLT जो मैंने दिया था, आई गॉट 40 marks in that. Oh, so 40 is a good start. Yeah. So I thought it's a good start, but I kept on giving the test 42, 43, 40, 42. So stagnant. So I just sat and just thought what to do next now, and then I start preparing the numerical notes. So I would like to show one, sir, here. Just a minute. So I purchased a book like this, you know, and just this one, and then I started, you know, analyzing this. क्वेश्चन लिखा है उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिखा है उसका सॉल्यूशन. तो अगर एक सब्जेक्ट लिया ना तो उसके टॉपिक वाइज दे दो, एंड देन सब्जेक्ट वाइज दे दो, उसी दिन दे दो. या क्योंकि मेरे पास जस्ट जनवरी बचा था उस समय, तो आई डिड कंप्लीटेड, मतलब पूरा तो नहीं हो पाया लेकिन 80% मैंने कंप्लीट किया था. आई कंप्लीटेड 80%. वो मैंने टेस्ट करके गया, एंड देन अनएक्सपेक्टेडली द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2022 वाज लिटिल डिफिकल्ट. यस. सो बट आई डिड वेल. 45 marks as per my caliber, and rank was 4097 at that time. So you know, just I then
I knew I have to give it in the 4th year also. Yes. So actually I was overconfident at that time. 45 3rd year में आ गया, 4097 है, अभी किसी जरूरत नहीं, अभी सेल्फ स्टडी करूंगा, हो जाएगा मेरा. Because my mistake was I did which hard work I have done in the 3rd year, I didn't repeated that in the 4th year. मतलब Yes. you know, no progress was happening. I Correct. repeated the same thing but something less. So in the this year in the 3rd attempt I started to revise all the concept again. मैथ्स मेरी थोड़ी वीक थी तो वो स्ट्रॉन्ग की मैंने. तो मैथ्स में थोड़ा बहुत काम किया एंड देन एफएम के या मतलब जो छोटे छोटे कंसेप्ट हमारे रह जाते हैं कि व्हाई दिस व्हाई नॉट, तो आई स्टार्टेड कवरिंग ऑल दोस पॉइंट्स एंड इवेंचुअली मेरा आई started to build up my momentum. Okay, so in the month of August I started giving the subject test and marks were decent, not pretty good, you know, and I knew that I am lagging behind due to silly mistakes, not due to concepts now. Yes. क्योंकि एक satisfaction रहता है कि हाँ इनकरेक्ट में गए, नॉट इन द स्किप्ड वन. करेक्ट. क्योंकि मुझे यू नो आई वाज थ्रेटन बाय द स्किप्ड वंस कि ये स्किप क्यों हो रहा है मेरे से. Yes, 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 right. So yeah, you know, so I worked upon that areas, those areas, and started each and every concept which I have written in my 3rd year, each question, and then I revised thoroughly with that, purchase exegetic test series again, and solved each and every numerical very concisely and perfectly, and make my own notes, you know. हर एक क्वेश्चन लिखो, उसका सॉल्यूशन लिखो, what extra could have been done in the, and one thing I would like to add here, the exegetic video solutions were great sir. awesome. मतलब Yes. जो मतलब बोलते हैं ना बारीक छोटे छोटे जो पॉइंट्स रहते हैं जहाँ से आप यू नो, क्योंकि वो मेरे ख्याल से इन्वेंट्री और क्विक क्यूएलएन का जो रहता है इंडस्ट्रियल में उसके बहुत कंसेप्ट है. मतलब इफ यू गो ऑन अप्लाई द फंडामेंटल्स वन, बहुत लेंदी भी अप्रोचेस है. बिल्कुल. अगर वो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन n कस्टमर्स है तो दैट फॉर्मूला लैम्डा बाय म्यू पावर k प्लस 1 कब होगा एंड लैम्डा पावर म्यू k कब होगा. दैट्स those small concepts and I just work upon those areas, small areas, and eventually I got this. And in December month, pleasant surprise for Exergic, Ayushi ma'am called me and she told that sir has been tracking your each test. So you know, I was shocked because 3rd year में मुझे पता था, आपने जब कहा था कि हम लोग ट्रैक करते हैं, लेकिन वो जब 4th कॉल आया ना मुझे तो यू नो लाइक यस अभी कुछ किया जा सकता है. हाँ सही चल रहा है, तैयारी हाँ अभी सही चल रहा है. हाँ मतलब एक अचीवमेंट था मेरे लिए कि वो भी मेरा एक सपना था कि हाँ एक्सर्जिक सर और मैम मतलब टीम पूरी मेरी टेस्ट सीरीज एनालिसिस कर रही है. तो उन्होंने भी फीडबैक दिए कि मेरे एप्टीट्यूड में बहुत मार्क्स कम होते थे एंड उसके ऊपर मैंने और काम किया एंड देन ईच एंड एवरी इनपुट गिवन टू मी आई वर्कड अपॉन इट एंड फाइनली गॉट द रिजल्ट. और एक तो मैं पॉइंट आई एम टेलिंग दैट बोर तो होगा तुम्हें जनवरी तक आते आते कि मतलब मेरा तो सर यू नो 3rd अटेम्प्ट, सो 3 सालों से गेट ही चला, अभी बस अभी हो गया, अभी कुछ तो इससे आगे पढ़ो यार, अभी बहुत हो गया इसका. लेकिन जब टफ सिचुएशन आएगा तो फैमिली के साथ बात करो, मतलब लंच करते हो डिनर करते समय थोड़ा हंसी मजाक देख लो टीवी पे, तो फैमिली फ्रेंड्स एनीथिंग, आप कुछ खेलते हो हल्का फुल्का गेम्स वगैरह, इट कुड बी गेम ऑन योर लैपटॉप ऑल्सो, या छोटा मोटा आप अपना क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन जो भी आप खेलते हो, ऐसा कुछ जो एक वेंट जहाँ पे आपका प्रेशर वेंट हो सके. प्रेशर जो बिल्डअप हो रहा है वो आपका प्रेशर वेंट क्वेश्चन में ना हो, वो आपका प्रेशर वेंट प्रिपरेशन में ना हो, वो कहीं और रिलीज हो जाए प्रेशर वॉल, और फिर आप आओ जब यहाँ पे तो फ्री माइंड, फ्री प्रेशर फ्री होके आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करो. तो ये जरूरी चीज है. वन थिंग सर अबाउट, सॉरी एक्सर्जिक के बारे में बोलना चाहूंगा कि अभी जो मैंने एक्सर्जिक प्रो में भी एनरोल किया, मतलब ये दिस ईयर, एंड द क्वेश्चन ऑफ सुपर्ब लेवल सर, द फ्रेम क्वेश्चंस दे आर अनसीन, नोवेयर यू कैन सी दोस क्वेश्चंस, एंड सो दोस वर अनसीन, एंड आई वुड से दैट कि जो बेस कोर्स था यू नो, एक वो करने के बाद मतलब ऐसा लग रहा था कि यू नो आपने जो पॉइंट्स बताया ना, क्रिस्प बताए थे, मतलब जितना पेपर में आता है, नॉट दैट कि ये भी पढ़ लो, स्टडी दैट आल्सो एंड यू वोंट सी एनीथिंग. अपने जो पॉइंट्स मतलब मैं आई कुड यू नो, मैं बता रहा ना, मतलब जो मैंने बिल्ड किया सिर्फ 7 मंथ्स में बिल्ड अप किया सर. फ्रॉम जून टू दिसंबर आई ओनली बाय एक्सर्जिक 90% सिलेबस वर कवर्ड. यस वाज कवर्ड. सो great credit, huge credit to Exergic and the team. It's your hard work also, but thank you.
यस इट इज राइट, अरे या करेक्ट, सही बात है ये, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है कि वो थ्योरी पढ़ने में इतने ज्यादा डूब जाते हैं ना कि उससे फिर निकल नहीं पाते। वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्या करें, अब वो ऐसा भी नहीं है कि वो राइट राइट बोरिंग है, उसमें आप राइट डीप जाते जाओगे आपको मजा आता जाएगा। और राइट इट्स राइट नॉट राइट अबाउट डेप्थ, इट्स अबाउट विड्थ ऑल्सो, बहुत विथ कुछ है। ऑल्सो आप कवर करते जाओगे साइड यहाँ वहाँ के टॉपिक्स, तो आप बहुत कुछ पढ़ लोगे ऐसा जो कि मेजॉरिटी इररेलेवेंट है। तो आपको राइट ये ध्यान रखना है कि आपकी प्रिपरेशन का मेजर पार्ट जो है वो सिलेबस कवरेज नहीं होना चाहिए, मेजर पार्ट क्वेश्चन सॉल्विंग होनी चाहिए, न्यूमेरिकल स्किल्स होनी चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। बट अभी क्या है कि लोग इतने रैंडम चीजें पढ़ते हैं कि एक साल 12 महीने में वो 11 महीने 10 महीने सिलेबस ही पढ़ रहे हैं, तो करेक्ट वो फिर ऑब्वियसली गया वो ईयर, उस ईयर कुछ नहीं नहीं होने होता वाला राइट फिर। राइट राइट तो करेक्ट वो एक करेक्ट पॉइंट है। तो प्रथमेश, तुमने कैसे इंश्योर किया ड्यूरिंग योर कॉलेज कि एग्जाम्स हो रहे हैं, मिड सेम्स हो रहे हैं, चलता ही रहता है कॉलेज में कुछ ना कुछ, तो सो हाउ डिड यू मैनेज? मतलब my college was not that 75% compulsory attendance. They were like but तकलीफ तो बहुत दी थी, मतलब अरे तुमने सबमिट नहीं किया, इंटरनल राइट, असेसमेंट यहाँ पे, फिर वो टूर पे लेके जाओ, प्रोजेक्ट कुछ तो इंडस्ट्रियल विजिट है, एंड हाँ लाइक हाँ, प्रोफेसर लाइक वो कुछ कुछ पीछे पड़ जाते हैं, उनको कुछ बहाना चलता नहीं, अरे नहीं आना ही होगा, बिल्कुल, एंड वो थोड़ा अरे क्या गेट में लेट्स सी ऐसा, मतलब हाँ, कुछ प्रोफेसर ऐसे भी थे, अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं आना ही होगा करके, देन हम्म, वो तो होगा ही रहेगा, लेकिन शेड्यूलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यस, अगर इंडस्ट्रियल में मतलब शेड्यूलिंग, अगर वी आर स्टडिंग देयर, सो व्हाई कैन नॉट वी अप्लाई ऑन आवर स्टडी, सो वी शुड करेक्ट अप्लाई करेक्ट अकॉर्डिंग करेक्ट, टू, वी कुड डू द, मतलब हिसाब से, अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लो कि मतलब ये स्लॉट में ये करूंगा, मतलब ट्रेन, मतलब हमारे यहाँ पे बिल्कुल, मुंबई अभी जाना है तो ट्रेन पकड़नी है सुबह मुंबई यहाँ से, तो ये हाँ, बजे की ट्रेन पकड़नी है, तो सुबह उठने के बाद मेरे पास कितना टाइम है, ओके तो मतलब बिल्कुल, मेरे ये इतने वीडियो लेक्चर्स देखे हो सकते हैं, ओके देन फाइन, हाँ, एंड देन मेरा न्यूमेरिकल्स का क्या स्टेटस है अभी, तो फिर मतलब लंच ब्रेक होता है या जहाँ पे भी अगर एक दो लेक्चर फ्री मिल गए तो वहाँ पे लाइब्रेरी जाके उतने सॉल्व करो। हम्म, मैं ही बोलूंगा कि अगर करना है तो करना है बस, मतलब जितना यस। टारगेट सेट किया ना उतना होना ही चाहिए, तो वो एक रखना चाहिए तो आराम से हो जाएगा। जो तुम्हारी जर्नी होती थी डेली ऑलमोस्ट पनवेल टू पनवेल विच नहीं, प्लेस इन सॉरी मुंबई? सॉरी, डोंबिवली, डोंबिवली टू मुंबई, मतलब डोंबिवली टू मुंबई डोंबिवली कितना? टू घाटकोपर, 55 to 60 minutes ट्रेन ट्रेवल, वन वन साइड है, साइड, वन वन साइड एंड साइड, कमिंग बैक अंडरस्टूड, 60 minutes। अंडरस्टूड। तो वो टाइम क्या कोई तुम यूज करते थे कुछ रिवीजन मतलब करने या मैं इसमें? फॉर एग्जांपल सर अगर देखो तो ये मैंने मेरे माइक्रो नोट्स बनाए थे, मतलब पूरा मैकेनिकल इसके अंदर, सो हाँ, अकॉर्डिंग टू, मतलब ये मैं पढ़ता था, एंड मेरा एक हैबिट है सर फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड ओनली, कि हम्म, आई हैव हैबिट ऑफ राइटिंग ऑल द फॉर्मूलाज विदाउट सीइंग देम। तो मतलब ट्रेन में बैठे हो, मतलब बैग लेके बुक तो खोल सकते हो, अच्छा चलो रैंडम टॉपिक उठाओ, एफएम उठाओ, चलो ठीक है, तो उसके अभी हम्म, स्टैटिक्स के फॉर्मूले सब लिख के देखो आ रहे कि नहीं आ रहे, मतलब हम्म, वो अगर शाफ्ट है उसको घुमा रहे हैं, मतलब वो विस्कोसिटी वाला 2 पाई, हम्म, ओके फिर फोर्स लिखो, फिर कैसे आ रहा है, मतलब खुद से करेंगे ना तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होता है, डेरिवेशंस भी, करेक्ट, क्योंकि सही बात है, वो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूलाज तो अभी किसको भी याद रहेगा, या हाँ ये तो है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आना चाहिए नो डाउट, लेकिन आई थिंक दैट डेरिवेशन डिराइविंग ऑन योर सेल्फ इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। सो आई वुड करेक्ट, सजेस्ट कि मतलब जहाँ भी फ्री टाइम है, मतलब ट्रैवलिंग में तो यही करता था मैं कि जस्ट नोटबुक खोला एंड जस्ट लिख के देखो यार, गेटिंग इन माइंड और नॉट, मतलब आ रहा है कि यस, नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो जो ये नोट्स बनाए थे, व्हाट यू थिंक इज द आइडियल प्रोसेस टू मेक नोट्स फ्रॉम वीडियो लेक्चर्स? हाँ क्योंकि वीडियो लेक्चर में बहुत सारी चीजें समझाने के लिए बताई जाती हैं, बट यस मोस्ट कंसाइज फॉर्म में तो आप एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो बस। सो हाउ करेक्ट, डिड यू डिसाइड कि हाउ मच इज इनफ, और लिखूं कि नहीं लिखूं? ओके तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, मैं वीडियो कर से मैंने फुल नोट्स बनाए, देन उस समय एक्सेल जी का वो भी आता है, मतलब मटेरियल, मतलब रिटर्न मटेरियल स्टडी पीपीटी, मटेरियल, हाँ यस। स्टडी मटेरियल सॉरी, सो वहां से मैंने रेफर किया, मैंने नोट्स रेफर किया, दोनों में जो मैच हो रहा है इंपॉर्टेंट आई रोट डाउन ऑन इन माय शॉर्ट नोट्स, so not on my ओके, own, I just refer the exergic study material first, कि अंडरस्टूड, which अंडरस्टूड, important formulas are there and in my notebook, so I know just set theory जो बीच में आ रहे हैं वो लिख लो, like that। अंडरस्टूड, yes अंडरस्टूड। और so वैसे भी आप जब टेस्ट दोगे आपको और बेटर आइडिया, पीवाई क्यूज दोगे, टेस्ट दोगे, यू विल गेट एन आइडिया कि हाँ भाई ये जो है act- ये ज्यादा काम का नहीं है, और ये जो है ये ज्यादा काम हाँ का है। गेट पीवाईक्यू, मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर एक टॉपिक हो गया तो तभी करो, मेरे हम्म, जैसे कंपाइल मत करना, क्योंकि मैं गेट पीवाईक्यू 2022 में तो सॉल्व जनवरी में किया था, मतलब वो जो टेस्ट सीरीज वाला हम्म, सिलसिला चल रहा था मेरा, तो दैट टाइम ओनली आई सॉल्व
PYQs, वो भी नॉट कंप्लीट सम, मतलब थोड़े थोड़े जो बड़े बड़े लगते थे, हाँ दिस गुड क्वेश्चन, बिकॉज व्हाट used to happen is that test series level is there, PYQ level is here. Yes. So you know when you solve test series and you saw the PYQ question, अरे ये तो यही करना था, क्यों सॉल्व करो इसको यार, छोड़ दो इसको अभी. Correct. That case happens. So I would suggest कि when you complete the topic, solve it there only. जो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट्स रहे उसमें जो एनालिसिस वाला फैक्टर होता था बिटवीन टू फुल लेंथ टेस्ट्स, वो कैसे होता था? क्या पॉइंट एनालिसिस में यू वुड सजेस्ट टू स्टूडेंट्स कि ये तो ध्यान रखना एनालाइज करते टाइम? सर एनालिसिस आई वुड सजेस्ट टू स्टेजेस है. फर्स्ट इज मैक्रोस्कोपिक, देन माइक्रोस्कोपिक. Right. Macroscopic, what were your emotions during the exam? First two questions were easy and you were like, आ रहा है, सब आ रहा है. And then you just found that after 10th question I am not getting anything. So वो एक है. अगर ये समझो कुछ दूसरे मतलब another thoughts other than the gate, if you are getting those thoughts, then that should be stopped. Okay, and this is supposed to be the macroscopic analysis. Okay, and then exegetic में वो आता है ना नीचे कि okay FM में इतने आए थे, you did this much correct, bar graph आता है, analyze that first, then go on each question where you lag, and as I told that write down each question. अगर repeated है तो मत लिखो, मतलब if you have time then only do this activity, otherwise you know it would be time consuming. Right. So each question आगे समझो, मतलब for example dynamic analysis में you had given one formula, if you want to find the torque acting on crank pin, yes, then the F into direct, the V वाला डायरेक्ट एक्सप्रेशन आता है, वो इंटू करेंगे तो वो आ जाएगा. लेकिन समटाइम्स क्या होता है, लॉन्ग अप्रोच आता है, फिर वो cos थीटा sin बीटा थीटा प्लस बीटा करके इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, तो वो शॉर्टकट है ना, वो लिख लो कहाँ पे. एंड अगर आप रियलाइज करोगे कि बाद में व्हेन यू आर रिवाइजिंग द थिंग्स, इफ यू जस्ट रिवाइज योर न्यूमेरिकल नोट्स, योर कॉन्फिडेंस विल फ्रॉम ईयर टू ईयर. यस, राइट. क्योंकि यू आर रिवाइजिंग योर मिस्टेक्स वेयर यू कैन गो रॉन्ग. करेक्ट. क्योंकि टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट सर. मतलब अब ड्राइविंग स्कूल में जाओगे फॉर द 10 days, you can't learn to drive. For that you have to do the rigorous practice in the traffic and odd situations. That is the role of test series, I would suggest. बिल्कुल. क्वेश्चन छोड़ने की एक मतलब दैट इज द आर्ट टू, मतलब टेस्ट मैच Yes. मतलब ऑफ साइड की अगर फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे स्लिप है तो वो बॉल स्किप कर दो. तो अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब ये बार मेरा क्या हुआ था कि दिस टाइम 1 mark क्वेश्चन वेर लेंथीली फ्रेम्ड, यू नो. मैथ्स में भी सम क्वेश्चंस वेर, यू नो, आई थॉट 1 mark क्वेश्चन है यार मतलब इसके मतलब ये तो 2 mark के लिए आया. तो यू नो फर्स्ट दो क्वेश्चंस आई सॉल्व करेक्टली, and then you know I had developed this habit from test series, मतलब you know don't hesitate to leave the question. हाँ, okay, Yes. no problem. मतलब मैं एक टारगेट में बताना चाहूंगा, I had set for me, अगर इजी पेपर है, you know पेपर is easy, then 1 hour में 35 questions or 30 questions easily. If it is a moderate set paper, 25 plus question, and if it is a difficult question, then 20 plus question in the 1 hour. मतलब ऐसे नहीं कि मतलब नॉट लाइक दैट कि ओनली मैं आई हैव रीच्ड अप टू 40. हाँ, स्किप कर करके, मतलब यू हैव टू गो अंटिल द लास्ट क्वेश्चन इन द फर्स्ट आवर ओनली, और रीच यू नो जस्ट 5 क्वेश्चन लेफ्ट टू सी द होल पेपर. अप टू दैट व्हाट आई डिड इन दिस पेपर, you know, that's why marks increased this time. First 5 questions, you know, for 1 mark, 3 I solved correctly. Then I was going ahead, वो मतलब वो स्टेप फंक्शन वाला कुछ तो न्यूमेरिकल मेथड्स का क्वेश्चन आ गया, मैंने कहा ये क्या पूछ लिया अभी, समझ नहीं आया, छोड़ दिया. उसके बाद एंड देन और एक कुछ तो था, अभी क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, वो मतलब छोड़, वो हीट ट्रांसफर वाला था, DTM by DTZ. मैं तो वो मतलब वो एम्बिग्यूटी थी, मतलब वो समझ आ रहा था, मतलब तो फिर मैं यू नो बोर हो गया था. मैंने आई न्यू कि 25 क्वेश्चन के बाद 2 marks के तो आ रही है, सो आई वेंट डायरेक्ट ऑन 2 mark क्वेश्चन. क्योंकि आई हैव listened that in one toppers video that sometimes 2 mark question are easy and 1 mark question they said difficult. So when I went on the first question, that was the 2 by 2 matrix, a is equals to lambda is equals to 3 by easy, देख के हो गया वो लो, yes 2 mark मिल गए. Then I moved to the next question, उसमें भी not like that, फिर वो टॉम वाले क्वेश्चंस आ गए. तो आई न्यू कि ये हो सकते हैं, अभी के लिए स्किप करो. एंड देन वो हीट ट्रांसफर वाला 0.625 जो आपने यू अपलोडेड सॉल्यूशन, उसके लिए तो मैं कुछ अजीब ही किया, मतलब हीट कितना आया, फिर फाइनल टेम्परेचर निकाला वाटर का, एंड देन एमसीबी डेल्टा भी वापस लिखा, एंड
got the answer. लंबा Okay, happy. लंबा मेथड लंबा लिया। method, yeah, I use that. चलो कोई नहीं। And then I thought that अरे हाँ 2 mark के आ रहे you know, paper is going good. First time in my all 3 attempts, my rough book was failed and I have to take the another one. Oh, so you had to submit the first one? Submit the first one, I have to take this another one. Oh. Yeah, okay, so you know, and yes, paper is going good at till the end. Then I thought कि अभी aptitude नहीं जाते, अभी 2 mark के just you know after 55 question आते technical में यहाँ पे, तो I just मतलब थोड़ा पानी पी लिया and just sat for 1 minute. Okay, paper is up to the mark. I have attempted 23 in 1 hour, so I am on the lead. Just I have to calm down and solve how much I get. जो point Prathamesh is trying to convey, वो point ये है that your first hour strategy should be rock solid. कि in the 3 hours, first hour में मेरे को क्या speed रखनी है, I don't have to engage in lengthy फालतू question जिसमें time waste हो सकता है जो मुझे नहीं आ रहे हैं. You have to keep an eye on watch also, clock also, कि कितना टाइम बच रहा है ताकि आप फर्स्ट आवर में 20 to 25 तो टच कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो क्वेश्चंस. वो बहुत जरूरी है क्योंकि शुरुआत फर्स्ट आवर अगर सही नहीं गया तो इट बिल्ड्स अ प्रेशर कि अब आधा टाइम चला गया, 1.5 घंटा हो गया, अब लास्ट आवर बचा है और अभी तो मेरे 50% क्वेश्चन भी टच नहीं हुए या 50% मार्क्स भी नहीं आए. दैट एडेड प्रेशर विल देन अफेक्ट योर मार्क्स, विल इंक्रीज योर सिली मिस्टेक्स. तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक रॉक सॉलिड फर्स्ट आवर की स्ट्रेटजी बनाओ, एंड दैट यू कैन डू ओनली एंड ओनली बाय टेस्ट सीरीज. व्हेन यू विल अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज, उसमें इजी टफ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस और पेपर होंगे. ओनली देन यू विल फिगर आउट कि यार व्हाट्स द बेस्ट वे फॉर फर्स्ट आवर, कितना मेरे को रखना है. सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है. पीपल हैव यूज्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्ट्रेटजीज, बट आपको अपनी स्ट्रेटजी फाइंड आउट करनी है, क्या मेरे लिए बेस्ट है इन सारी स्ट्रेटजीज को सुन के. प्रथमेश, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, क्या ऐसे कुछ टिप्स स्टूडेंट्स को तुम देना चाहोगे या क्या ऐसी क्वालिटीज तुमको लगता है कि गेट एस्पिरेंट में होनी ही चाहिए अगर गेट में सक्सेस चाहिए? बिकॉज यू हैव सीन ऑलमोस्ट डिफरेंट फेजेस, कॉलेज के साथ प्रिपरेशन हुआ, फिर ड्रॉप भी हुआ, तो क्या तुमको लगता है कि क्या बेस्ट क्वालिटीज होने चाहिए गेट एस्पिरेंट? फर्स्ट इज सर, इफ यू वांट टू क्रैक गेट, कमिटमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. कि मतलब नॉट दैट फर्स्ट 2 months यू नो गेट एंड देन जस्ट अभी नहीं हो रहा, अभी दूसरा कोई एग्जाम देखते. That's a wrong approach first. And then you should be ready for the test series. I thought, you know, you should be growing like, you know, matured बनना पड़ता है अगर पेपर अच्छे से निकालना है तो. Correct. You have to be selective. क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, that's more important for that. Yes. And you know, motivated हमेशा रहना है. Internal motivation ज़्यादा मतलब, you know, it's because it's a question of your career. Correct. How you want to be in the next 5 years down the line, you have to see on yourself. Yes. Because no one can tell you that what you want to be in your future. Bilkul. And last is the dedication. And smart work is also necessary with the hard work. Ki matlab which type of question you are solving. Yes. Not that you know सब कुछ अगर वहाँ पे लग रहा है concepts तो it's a good question. Or else you know there's formula put karo and all direct one liner question, not that great. Correct. मतलब आपने जो बोला अभी थियरी पढ़ के, मतलब इंटीग्रेशन लगाना पता होना कि हाँ क्वेश्चन में होना है, मतलब इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएट करके इसको सॉल्व करना है समझो, या बीम मतलब ये क्वेश्चन है, लेकिन कैसे लगाना है, मतलब हाउ टू अप्रोच दैट क्वेश्चन, दैट्स सॉर्ट ऑफ मोर इम्पोर्टेंट. करेक्ट. सो फॉर एग्जांपल दैट कास्टिग्लियानो थ्योरम, you know, have to study the different cases. If you have to master that, you have to solve as much varieties as possible. Not number of questions, varieties are more important. Variety of question, yes. You know, sometimes people say that solve 100 questions per day. Not 100 questions, 10 are also sufficient, but of different variety. Absolutely. That's a smart difference between the smart work and hard work, I would say. कि हाँ मतलब सुबह से बैठे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन वो बहुत इजी क्वेश्चन है तो it won't make a difference, you know. Yes. But you're solving 20 questions of good quality, you're through. Correct. So I thought that commitment and selective approach and dedication are the most important qualities. And should be ready for the challenges. अगर marks कम आए, you know that my marks are low, depressing, not getting, you should be knowing to get fight back. Correct. That is what is gate requirement. Yes. चलो, अच्छा लगा प्रथमेश तुमसे बात करके डिटेल में. आई एम श्योर स्टूडेंट्स आल्सो विल गेट टू लर्न
a lot from your journey and from the things that you have shared. Yes. बाकी best of luck आगे के लिए भी. Thank you for so your much, sir. future journey as well. Yes, sir. Yes. And big thanks to you, sir. Most welcome. Most Yes, welcome. sir. Yes.